अच्छा, तो वो उधर ही चला रहा है टीम अभी अपना ऑफिस रिकॉर्डिंग है। This meeting is being recorded. So myself Sachin Jain, I am from Medhavi Skill University, had admissions, and I have with me Mr. Siddharth Banerjee, who is Program Director, BSc Hotel Management, Medhavi Skill University, and we have with us Aman, who is running admission consultancy in Jammu. So Aman. जी सर, हेलो सर। तो सर यहाँ तक कर कि मैं यही जानना चाहूँगा कि इसके प्रोग्राम्स के बारे में मुझे थोड़ा बता दीजिए। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। ओके, बाद हम लोग होटल, सर यू कैन स्टार्ट अबाउट द कैरियर इन होटल इंडस्ट्री, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम। career in hospitality, there is a huge scope. Huge scope in the sense, anybody is doing hotel management, they are fit for any industry, because all the industry is totally dependent upon the customer. So in this particular option, student get the exposure to work in 5-star luxury hotel where top class guest, we call guest, to understand it is customer. They come to the hotel, they stay, they enjoy the food and other facilities in a hotel. So the advantage is doing a hotel management inside the industry. They get the exposure where the operation is going on. So this particular hotel management, BSc in hotel management and hospitality, is offered by Medhavi Skill University. Medhavi Skill University, any courses are industry integrated. That means from the day one, people get exposure to work in that particular industry and get a chance to learn in a hands-on way. So this particular curriculum and course will be delivered in IHG group of hotels, which is called Intercontinental Hotel Group. This is one of the biggest hotel chain in the world, having 6,000 hotels across the world, and around 50 hotels are in India. So we have started this program in Delhi NCR region. So any student who is 10+2 pass and around 18 years of age can join this BSc Hotel and Hospitality Management course, which is in the industry, with the industry, and a practical exposure will be delivered by the hospitality people, whoever is working in that particular hotel. The exposure in this particular field is not only the hotel industry, there is an option to go and join airlines. There is an option to go and join in cruise liner. Cruise liner is a 5-star hotel on a ship. They can move around the world. The option is open for a retail as well as BPO and other, even in automobiles, wherever there is a guest contact. Hotel management course, they can become a supervisor after doing the hotel management. The starting salary will be around 20 to 30,000 rupees. If they perform well, if they can speak very good English and excellent communication skill and learn the skill which is required in IHG group of hotel, in 3 years time, when they will come out with a degree and a 3 years experience that will help them to get a job anywhere in the world. As well as any hotels will give them a very good job in India, as well as any hospitality
related industry. In a long run, if they perform well, they learn whatever the skill and other communication skill are required, they can come up to the general manager level. Even any HOD level in a 5-star deluxe hotel salary is in lakhs. So there is ample amount of opportunity to learn and develop their own skill practically as well as theoretically. The theoretical classes will be delivered by the faculty of Medhavi Skill University, and practical will be delivered in every outlet inside the hotel. So when they will come out with the degree, they can join IHG group of hotel as well as any other industry option is open for them, because they have come up with a UGC recognized degree from a skill university as well as the real practical exposure experience of world famous hotel chain of IHG group. So there is no limitation. They can go to any country across the world and earn salary in foreign currency. Like in my life, I did hotel management the way back in 1991. After that, I got the chance to go to Gulf country. I was in Kuwait, I was in Abu Dhabi. After that, I went to Europe. I was with Hotel School The Hague. From there, I got a chance to go to Italy, Germany, France, and came back to India. And as there is so many jobs are also available after the degree of hotel management in government also. In institution, wherever there is a facility of people can stay and there is a restaurant or any food service outlet and bar. So these people get exposure to go and work in any hospitality related industry, even in the guest houses of government. If somebody is looking for a government job, there is railway catering, there is airline catering. So all the options are open. Any other question you wanted to ask? आप कुछ पूछना है आपको? नो सर, बाकी बस यही पूछना था कि और क्या फ्यूचर में क्या रहेगा बच्चों के लिए, मतलब कि बच्चे के लिए ऑप्शन है कि होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री बच्चे को ऐसे तैयार कर देता है। और हमारा जो कोर्स है ये कोई इंस्टीट्यूशन बेस नहीं है, ये होटल बेस है। तो एक 5-स्टार लग्जरी होटल में अगर बच्चा पहला दिन से काम कर रहे तो 3 साल का टाइम में वो बच्चा बिल्कुल ही कामयाब हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा कि वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो उस जगह पे उस 5-स्टार लग्जरी होटल में वर्ल्ड का फेमस चेन में एक तो होटल मैनेजमेंट करके बाकी कॉलेज से वहां नौकरी मिलना ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, पहला दिन से ही चला जा रहा है, वही काम सीख रहे हैं, वही 3 साल थ्योरी प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। जो लोग उस होटल में काम कर रहे हैं उन लोगों को अगर पूछा जाए, जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा क्राउन प्लाजा आईएचजी का होटल है जी, उसके जो जनरल मैनेजर है अमेरिका से पढ़ के आया, उसको उनका सैलरी है 7 लाख रुपया, रहने के घर, मकान, गाड़ी, इतनी सैलरी, सब कुछ फैसिलिटी फ्री वो दिया हुआ है। तो होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद अगर वो एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन गया, शेफ मतलब जो किचन लाइन में होता है, जो टोपी बनती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो लोगों का भी इतनी डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका भी सैलरी लाखों में होता है, उनका भी उतनी फैसिलिटी मिलता है जितना जनरल मैनेजर को मिल रहा है। और अगर वो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, तो उनके लिए तो किसी भी, क्योंकि हर इंडस्ट्री डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर हैंडलिंग स्किल 3 साल में उनको ऐसे सिखा दिया जाएगा, उनकी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन,
उनकी बिजनेस सेंस, ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो ओके इसीलिए ये पर्टिकुलर कोर्स बहुत ही फायदेमंद है किसी भी बच्चे के लिए। और जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, वो 3 साल में उसका पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अपने आप वो सीख जाएगा। क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल उसका बिना बिना अंग्रेजी बोल के वो काम करने का उसको मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे अगर छोटे हाँ नहीं बड़ों को, बहुत क्योंकि बिल्कुल कोई बिल्कुल बच्चा आएगा उसको इंग्लिश पढ़ लेगा, वो लिख लेगा, बिल्कुल समझ लिख लिया, लेगा बोलने में उनको समझ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस एनवायरनमेंट ऐसा है, ऐसे हालत में वो काम करेगा तो उनको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। टूटी फूटी इंग्लिश से भी वो धीरे धीरे बिल्कुल जब 3 साल बाद इंग्लिश बोलते बोलते एक टाइम में कम्युनिकेटिव इंग्लिश तो सीख ही लेगा। अगर अच्छा इंग्लिश बिल्कुल है तो फ्रंट लाइन में रहेगा, अगर अच्छा इंग्लिश नहीं है तो हाथ का काम सीख लेगा। तो ओके इसे हैंड स्किल बोलता है, वो सीख के वो शेफ बन सकता है। बैक ऑफ द हाउस में भी काफी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ओके हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। तो एयरलाइंस में, शिपिंग में, कोई भी कस्टमर क्या है, ऑटोमोबाइल है, शोरूम है, रिटेल है, बीपीओ है, किसी भी जगह पे वो उसके लिए कामयाब बन जाएगा। कामयाब बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोर्स फीस भी और काफी हमारा हम्म कम है, क्योंकि स्किल यूनिवर्सिटी है, हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट है। बाकी ओके जगह पे पढ़ने के लिए अगर 6 लाख रुपए लगता है, जी इवन आईएचएम में पढ़ने के लिए भी 5 लाख रुपए खर्च होता है। नहीं वो तो तो है ही है बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चे का फीस 30,000 रुपया पर सेमेस्टर का है। हम्म उसमें बच्चा फर्स्ट ईयर में उसको स्टाइपेंड मिलेगा, सेकंड ईयर में भी स्टाइपेंड मिलेगा, थर्ड ईयर में भी स्टाइपेंड मिलेगा। कुल मिला के ओके 3 साल अगर वो पूरा करे तो 3 साल में वो 3 लाख रुपया स्टाइपेंड ही कमा लेगा। स्टाइपेंड भी कमा लेगा बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। स्टाइपेंड भी कमा लेगा, डिग्री भी कमा लेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस भी कमा लेगा। और इनका जो वर्किंग डेज जो है आप बताया था कि 6 डेज होगा वो शायद से। थोड़ा वो थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट के लिए। अगर वो सोच रहे हैं कि कॉलेज की जो मजा है कि मैं क्लास बंक करके कहीं गपशप मारूं, कैंटीन में अड्डा मार गप्पे मारूं, वो वो मौका उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छह नहीं साल मिलेगा का काम वो 3 साल में सीख रहे हैं। जी उसको जी डेली बिल्कुल उसको 9 घंटे का ड्यूटी पे जाना है, 1 घंटा उसको खाने का चाय का ब्रेक है, ओके छुट्टी उसको वीकली एक मिलेगा। ओके हर 5 दिन थ्योरी प्रैक्टिकल क्लास करने के बाद एक दिन थ्योरी क्लास करेगा। थ्योरी क्लास करेगा ठीक है तो हर सेमिस्टर के बाद उसको ब्रेक मिलेगा 1-2 हफ्ते का। वो ओके। घर भी जा सकता है, इधर उधर घूम भी सकता है, तो कोई प्रॉब्लम। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कोर्स खत्म होने के बाद आफ्टर उसी होटल में अगर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अरे होटल जो ये प्रोग्राम जो हमारे साथ टाई अप किया, वो अपने लिए बना रहे, तो ओके नौकरी उसको पहले दिन से रेडी है, उसको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जितनी वैकेंसी उस होटल में है उतनी लोग लेके वहां पे पढ़ाया जाएगा। ओके ओके तो नौकरी पक्की है उसकी पहले दिन से। अगर वो 3 साल पूरा करे, उस 3 साल होटल में पूरे उसको नौकरी मिलेगा। उसी होटल में उसको नौकरी भी मिल जाएगा है ना। उसी होटल में नौकरी उसको पहला ऑप्शन दिया जाएगा। अगर वो ओके करे तो अच्छी बात है, अगर वो अच्छी नहीं बात करना चाहता है कोई बात नहीं, वो कहीं और होटल में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना। लेकिन ओके पहला मतलब ऑप्शन ये है कि उस होटल में नौकरी करे, उसको कि रिक्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फर्स्ट उसके पास ऑप्शन ये है कि मेरी आफ्टर प्लेसमेंट यहाँ पे है ही है। प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, वो प्लेसमेंट ही है, शुरू से ही आप दे रहे हो। प्लेसमेंट शुरू शुरू में ही प्लेसमेंट है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो उस ग्रुप में उसका इंटरव्यू लेगा, उस होटल का स्टैंडर्ड का है तो बच्चे को एडमिशन मिलेगा। अगर वो उस ओके होटल का स्टैंडर्ड में नहीं है, एडमिशन ही नहीं मिलेगा उसको। ओके। तो बीच अगर में किसी जैसे कभी और में तो किसी मिलेगा। स्टूडेंट्स को कभी ऐसे हॉलीडेज में कभी घर जाना पड़े अगर कोई हाँ, वो जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ओके उनका वो ईयरली कुछ हॉलीडेज का रहेगा उनका या देखिए, फिर। हर 6 महीने बाद सेमिस्टर ब्रेक है, वो सेमिस्टर ब्रेक में वो घर जाएगा। ओके उनके 6 महीने में वो घर जा सकता है दूसरी बीच बात, में। होटल एक एंजॉयमेंट की जगह होता है, वो बच्चा जी कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बिल्कुल जैसे कभी वहाँ इमरजेंसी डेली, बन गई हाँ डेली जैसे वहाँ ईद कोविड। हो रहा है, दिवाली हो रहा है, होली ओके हो रहा है, डेली का काम है। समझो डिस्कोथेक ओके भी है, नाइट क्लब भी है, बार भी है, डांस फ्लोर भी है। वो हम्म। बच्चा बैंक्वेट में फंक्शन हो रहे हैं, शादियां हो रही है, बिल्कुल वो बिल्कुल हैपनिंग बिल्कुल प्लेस होता है होटल। ओके ओके। तो जैसे वो आफ्टर मतलब जैसे बीच में कभी कोविड की कभी कोई स्ट्राइक हो गई या कुछ हो गया तो उस टाइम पे उसको बच्चा क्या करे। मेडिकल चेक बिना आप, एक आदमी जो लाखों रुपए दे रहे हैं उसके पास बिना मेडिकल चेक, मेडिकल ट्रीटमेंट, बिना बीमार आदमी नहीं भेज सकते आप।
हाँ हाँ उसका बिल्कुल चिंता नहीं है, होटल ही देखभाल करता है, उसमें कोई हाँ, रास्ता नहीं है कोई बीमार ओके पड़ जाए। ठीक 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 ठीक। तो रहना, चलो, उसको रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, खाने का होटल में है, यूनिफॉर्म भी होटल का है। नहीं फिर तो बहुत बढ़िया है। मतलब कि मैं तो खुद मतलब कि ज्यादातर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही कहता हूँ कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो, क्योंकि ग्रोथ भी है वहाँ पे और आपको मतलब कि करियर अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी है। कल से अगर आपको सीख के आते हो तो खुद का भी कोई बिजनेस आप घर पे कर सकते हो, कोई अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो अगर अरे खुद का भी। वो काम तो वो डेली का करेगा, वो सीख भी हाँ जाएगा कि सीख भी जाएगा। प्रैक्टिकली होता क्या है, हाँ करना क्या है, बिल्कुल बिल्कुल देखने बिल्कुल। को मिलेगा। वो भी क्या, वो सबसे अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उससे वो अच्छा तो है। हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जिस वो तो होटल में बढ़िया मैं रहे। ट्रेनिंग करने की बात कर रहे हैं हम लोग, क्राउन प्लाजा हाँ हाँ ग्रेटर नोएडा, उस होटल को ओके बनाने 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ओके। 8.5 एकड़ लैंड के ऊपर बना हुआ है, 400 रूम का होटल है। और सर जो कि इनका जो स्टाइफंड होगा वो हर साल इंक्रीज होगा या वही 3 साल प्रोग्राम के लिए वही चलेगा? हर महीने में मिलेगा, हर महीने में उसको स्टाइपेंड मिलेगा, उसका जो खर्चा उसमें से निकल जाएगा। जो ओके पैसा लगा के पेरेंट्स उसको मान लीजिए आपने, जो बच्चा, हम्म मान लीजिए आप 6 सेमिस्टर आए, 30,000 हम्म, करके दे रहे तो 1,80,000 रुपए दिया, ठीक उसको है 3 लाख मिला लगभग। उससे भी पॉइंट पॉइंट मिला के जितना देगा उसका पेरेंट उसका डबल कमा लेगा वो आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो एकोमोडेशन का रहेगा जो 3 साल का, हाँ, वो उनको वहीं से पेमेंट करेगा वो। वो मतलब कि होटल ही पेमेंट करेगा ना ना या? ना, जो स्टाइपेंड है उसमें से करना पड़ेगा उसको। अच्छा ओके, जो स्टाइफंड है उसी में वो अपना वो पीजी ले हाँ सकता हाँ, है। रहना खाना तो घर में भी रहेगा तो खर्चा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कभी कभी क्लाइंट ये सोचता है कि अगर हम होटल में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्या होता है होटल से ना एकोमोडेशन का मिल जाता है, रहने का भी मिल जाता है। वो नौकरी के बाद, नौकरी में अगर रिजॉर्ट होटल है अच्छा मिलता है, ऐसे जो मेन सिटी ओके का होटल है वहां नहीं मिलता। ओके ओके, और वहां नहीं होटल का मिलता रूम जो वो है, मतलब कि उनको नियर बाय कहीं पे। और होटल में रूम पे ओके पीजी में। एम्प्लॉय नहीं रह सकता। ये होटल का रूम बनाने के लिए करोड़ों ओके रुपया खर्च होता है एक रूम के लिए, लाखों रुपया, हाँ लाखों हाँ, रुपया। नहीं वो तो है ही है। वहां का जो रूम है, वहां जो ओके अपार्टमेंट रूम ओके से है, उसमें 1.5 लाख रुपया किराया है। हम्म, तो कहाँ से देगा लोग, ओके। है ना। वो तो है। नहीं मैं जब हमारा जो प्लेसमेंट्स हम कर रहे हैं कुछ होटल सेक्टर्स में होती है, पर मैक्सिमम कुछ होटल से आए तो वो रिजॉर्ट में अपॉर्चुनिटी होता है वहां पे छोटे। उनको दे देते हैं उन्होंने। हाँ डोलमेंट्री वगैरह कुछ बनाया हाँ, होता है उन्होंने, वो रिजॉर्ट होटल में होगा। है ना? जो आईएचजी का जो रिजॉर्ट है, ओके ओके वहां पे रहने का बंदोबस्त हो भी सकता है। ओके। अच्छा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि फ्यूचर में जैसे इनकी जॉब वगैरह लग जाती है वहां पे तो फिर हो सकता है कुछ तब तो रहने का। तब तो रिजॉर्ट में मिलेगा, फिर तो इसमें उनको एचआरए मिल जाता है, रहने के लिए जो किराया ओके। वो मिल जाता है। तो अरेंजमेंट तो खुद को अच्छा करना हाँ पड़ेगा। ओके, खुद का करना पड़ेगा मतलब कि अलाउंस वगैरह वो दे देंगे फिर, है ना? हाँ हाँ। ओके ओके ओके। नहीं बहुत बढ़िया है फिर भी। क्योंकि यहाँ पे घर बैठ के भी वो क्या करेगा मतलब कि तो बाहर निकल के थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लड़के भी देखने बिल्कुल में सर। अच्छा होता है, आप देखिए, उनको भेजिए, समझाइए, सर बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और एक्चुअली थोड़ा बाहर निकलने में तो बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं तो इसलिए उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो हम फिर भी कोशिश सेटिस्फाई करेंगे देखिए, ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे काम होगा, घर में तो तो सब कुछ आके सेटिस्फाई देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ना घर में कोई पढ़ाई जी देगा, जी घर जी में ना कोई नौकरी देगा, है ना। घर पे ना बाहर निकल नौकरी के देगा, नहीं करना बिल्कुल पड़ेगा। बाहर निकलेगा, बाहर की दुनिया देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने घर वाला का कोई बनेगा। नौकरी तो देता तो नहीं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल मैं बिल्कुल। जैसा मैं किसी को, मेरे को बोलते सर वो घर में बैठ के नहीं हो सकता, मैंने बोला फिर मैनेजर को भेज दो आपका घर में इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ हाँ, इंटरव्यू के लिए लेने के लिए नहीं काफी बारी होता है हमारे पास भी सर। मैं पिछले 2016 में मैंने रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया था, तो हम्म, उससे पहले थोड़ा उड़ान का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यहाँ तक कर कि अब मेरा जो एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट जब भी यहाँ पे आता है यही पूछता है कि पहले मुझे यहाँ पे आप ही बता दो सब कुछ। तो मैं बोले अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप होटल वाले क्या बताएंगे आपको? नहीं नहीं, आप उनको तो बताओ, उनको दिखाओ। आप सचिन जी के पास सारे मटेरियल है, वो उनको हैंड ओवर करो, उसमें लिखा हुआ है, वेबसाइट से भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं है।
सब कुछ पता कर सकते हैं, सब कुछ सामने है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, वो मैं मटेरियल ये वगैरह सब जो भी शेयर होगा, करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि ये मैसेज जो है सभी अपने जो भी है हमारे यहाँ के बच्चे तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।